So I want you to think back to your school days. और आप अपने स्कूल के दौर को याद करें And which picture best describes you? कि कौन सी तस्वीर आपको जो है वो जाहिर करती है। Is it going to be this one क्या ये वाली or this one? ये वाली? Last time I was preaching, I was talking about the wood pigeon. और पिछली दफा जब मैं कलाम सुना रहा था तो मैं ये जो लकड़ी का कबूतर होता है इसके बारे में बात करता। You see them waddling around in the garden. They're rather overweight. They appear to be anyway. और ये कबूतर जो होते हैं ये बहुत बड़े हो जाते हैं और आप उनको देखोगे चलते को। And they're very common, so we just think, well, they're pretty birds, aren't they? We don't think anything of them. और ये बड़े आम से होते हैं इसलिए हम इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। Until we pay attention. और जब हम इन पर ध्यान देते हैं, Until we look closely at them. जब हम इनको गौर से देखते हैं, You see, they've got a very interesting white collar here and a nice coloured breast here. And when we see them flying, और फिर जब हम इनको गौर से देखते हैं तो हम इनके रंगों के बारे में देखते हैं कि कितने खूबसूरत रंग हैं इसके। और जब हम इनको उड़ता देखते हैं, we see that actually they're really very beautiful. और हम देखते हैं कि ये बहुत खूबसूरत कबूतर है। Have you noticed wood pigeons lately? आपने ये जो लकड़ी के कबूतर के कहलाते हैं इनको ऐसे आपने देखा है कभी? Since I last preached here, जब से पिछले हफ्ते से जब से मैंने पेश किया। watch out for them and let them be a reminder for you. Let them be a lesson for you. और इनके बारे में जरा देखिएगा इनको गौर करना और आपके लिए एक सबक भी होगा। Watch them when they're flying. See how beautiful they are, and let it remind you that don't try to not just take things for granted. और इससे फिर हमें ये भी देखना कि हम बातों को जो है वो ऐसा मामूली सही ना ले लें। We've heard the gospel so many times और हमने जो है अंजील कई दफा सुनी that we can switch off. और हम बाज़ वक़्त अपना ज़हन से भी वो बंद कर देते हैं। We can put our heads on the desk और हम इस तरह से अपना सिर जो है वो डेस्क पर रख देते हैं and just drift away और हमारा ध्यान वो दूर चला जाता है। to blissful oblivion. But that's not what we want to be doing. लेकिन हम ऐसा ये करना नहीं मानते We want to be paying attention, और हमारा मकसद है कि हम ध्यान दें especially when we remember these are the words of Jesus. और खास तौर पर जब हमें ये मालूम है कि ये खुदावंद की कलाम है। What other words should you pay attention to more than the words of Jesus? और खुदा की कलाम से ज्यादा आप किसकी बातों को ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे? Your own thoughts and desires? आपकी अपने ख्यालात और अपनी ख्वाहिशें। Paying attention to the words of Jesus will bring reward, and God promises that. और अगर आप खुदा की कलाम को ध्यान से सुनेंगे तो खुदावंद कहता है कि मैं उसके बदले में आपको बरकत दूंगा। Sorry, maybe I shouldn't say reward. Will bring fruit, and God promises that. तो सिर्फ अजर ही नहीं बल्कि खुदावंद के वादे और कलाम के फल जो है वो मिलेंगे। Paying attention and putting it into practice. और हम उसको ध्यान से सुने और फिर उसके ऊपर अमल करें। Here in Luke 8, Jesus himself says, pay attention how you listen. और यहाँ पर लूका की 8वें बाब में हमने पढ़ा कि खुदा कहता है कि उसको ध्यान से सुनो। Everyone who has something will be given something more. और जिसके पास भी जो कुछ भी है उसको वो और दिया जाएगा। This boy has a thirst for knowledge. और इस बच्चे के पास जो है वो एक ख्वाहिश है कि मैं कलाम को और इल्म हासिल करूं। He's already learned enough to know that knowledge is good for you. और उसने अभी तक इतना सीख लिया है कि इल्म जो है वो हमारे लिए अच्छा है। He's paying attention and he's getting something more. और वो तवज्जो से सुन रहा है और वो और इल्म हासिल कर रहा है। And this is Jesus' promise. What Jesus said, pay attention how you listen. Everyone who has something will be given more. और यहाँ पर हमने ये देखा कि खुदावंद कह रहा है तवज्जो से सुनो क्योंकि जिसके पास जो कुछ भी है उसको और दिया जाएगा। I love that picture. और मुझे ये तस्वीर बड़ी अच्छी लगी। I can identify with this picture लेकिन इस पिक्चर के साथ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं because it takes effort to pay attention.
क्योंकि तवज्जो से सुनना जो है उसके बीच में हमें एफर्ट करना पड़ता है। Jesus said, people who have nothing और खुदावंद ने कहा कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है will lose what little they think they have. और उनका जो ख्याल है कि उनके पास थोड़ा सा कुछ है उनसे वो भी ले लिया जाएगा। He thinks he has knowledge. और उसका ख्याल है मेरे पास इल्म है He thinks he knows enough. और उसका ख्याल है कि मुझे काफी मालूम है He thinks it would be better to nod off. और उसका ख्याल तो उसने इसलिए कहा कि मैं अभी सो भी जाऊं, But his knowledge will not grow. लेकिन उसका इल्म बढ़ेगा नहीं His knowledge will fade away. और उसका इल्म जो है वो धीरे-धीरे मध्यम पड़ जाएगा He will forget what he knew. और वो भूल जाएगा उसने क्या सीखा। And these are the words of Jesus. और ये मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। Pay attention तवज्जो से सुनो to how you listen. और सोचो कि आप किस तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। So we've been listening, you've been listening और हम यही सुन रहे थे to the Gospel of Luke. कि लूका की इंजील And through the Gospel of Luke, we've seen many different people up till chapter 8. और 8 बाब तक हमने बहुत सारे मुख्तलिफ किरदार देखे। See if you can remember who they were. और देखिए कि आप अगर याद कर सकते हैं कि ये कौन-कौन थे। Remember who these are? इनका मालूम है आपको? Not too difficult. They were the shepherds out in the fields. The angel appeared to them. And they went and visited Jesus in Bethlehem. और देखते हैं कि ये चरवाहा है और चरवाहे के ऊपर फरिश्ता ज़ाहिर हुआ और वो गए और उन्होंने तब यीशु मसीह को बैतलहम में देखा। This was Simeon, whom God had promised, you will not die until you've seen the Lord's Messiah. और ये समौन है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक नहीं कि तू मसीह को देख लेगा। And he was in the temple, and when he saw Jesus, he said, "Oh God, thank you, I've seen him. I'm ready to go." और जब उसने यीशु मसीह को देख लिया तो उसने कहा खुदा तेरा शुक्र कर तू मैंने तेरे इंतजार को तेरे को देख लिया अब मैं तैयार हो जाने And then there is the widow, a prophetess Anna. और फिर हमने देखते हैं कि ये अन्ना जो है एक नबिया थी बेवा थी And she used to hang around in the temple, और ये टेम्पल के बीच में ठहरी रहती थी काम करती थी and she recognized who Jesus was, and she was telling everybody about him. और उसने भी खुदा यीशु मसीह को जान के लोगों को बताया उनके बारे में। This one's easy. ये आसान है। John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। What? They're not here. These people are not here because they left their boats और ये लोग यहाँ पे इसलिए लोग नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी कश्तियाँ छोड़ दी थी and followed Jesus. और खुदा यीशु के पीछे चले गए। You remember the man with leprosy? आपको याद है वो आदमी जिसके कोढ़ निकला हुआ था Came up to Jesus, he fell at his feet, he said, "Lord, if you're willing, you can make me clean." और वो आके खुदा के कदमों में गिरा और कहने लगा खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर दे। Jesus stretched out his hand and said, "I'm willing." और खुदा यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू पाक हो जाए। Then we met the man let down the roof by his 4 friends. और फिर हम उसके बारे में भी देखा आदमी के जिसके दोस्तों ने छत खोल के उसकी चरपाई को यीशु के सामने लटका दिया। What did Jesus say to him? तो यीशु ने उसको क्या कहा? Your sins are forgiven. कि तेरे गुनाह माफ हो गए। That caused some trouble. और उससे बड़ी वहाँ पे अफरा-तफरी मच गई। Then we met Levi, और फिर लावियों को मिले tax collector. और वसूल लेने वाले। Jesus said, "Come and follow me." खुदा यीशु ने उनको कहा आओ मेरे पीछे हो लो। And we met the scribes, the Pharisees, और फिर जो है ये फरीसियों से मिले standing in judgment. और ये फरीसी अदालत के तौर पे Their खड़े थे hearts becoming more and more hardened. और उनके दिल जो थे वो ज्यादा सख्त होते जा रहे थे। We met the man with a withered hand. और एक वो शख्स जिसका हाथ सूखा हुआ था They wanted to see, the scribes and the Pharisees, was he going to heal him on the Sabbath? और वो फरीसी जो थे वो वहाँ पर देख रहे थे कि क्या इस आदमी को खुदा सब्त वाले दिन शिफा देगा। Then there were the crowds that Jesus preached to. और फिर वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा लोगों का हजूम भी देखा जिनको खुदा तालीम दे रहे थे। They were like any crowd. वो एक आम सा क्राउड था They were like any group. किसी भी आम ग्रुप की तरह। There were some who were paying attention and some who were listening. और बास जो थे वो तवज्जो से सुन रहे थे। Some who didn't really know why they were there. They were just there because they saw what's going on here. और बास जो थे वो बस वैसे ही आगे थे उनको नहीं था मालूम कि वो यहाँ पे ठीक हुआ पर उन्होंने कहा चल के देखते हैं लोग क्यों जमा। And there were those who were sitting in judgment on Jesus. और कुछ लोग वो भी थे जो कि खुदा यीशु मसीह को देख रहे थे कि इसके ऊपर अदालत करें। Last time I was preaching, we met और आखिरी दफा जब हमने प्रीच कर रहे थे that lovely Roman centurion.
तो ये रोटी पहुंच का सुबेदार जो था, such a humble man and yet a man in authority. और ये जो कि बहुत साहिब इख्तियार था लेकिन बहुत हलीम शख्स था। We met the widow of Nain, और हमने ये बेवा को भी देखा the dead son. और इसके बेटे को भी जो मर गया था। John the Baptist, who was in prison यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद खाने में, and was confused. और वो बड़ा जो है वो ज़हनी इंतशार में है। Is Jesus really the Messiah, or should we wait for someone else? और वो शक कर रहे हैं कि क्या खुदा यीशु मसीह ही मसाया है कि हम किसी और को देखें। We met Simon the Pharisee, who invited Jesus to a meal but never greeted him in a proper manner and treated him in a very rude way. और फिर हमने इस शमौन फरीसी को भी देखा जिसने खुदावंद को अपने घर में बुलाया और फिर उसकी इज्जत नहीं की। We met the woman और फिर हम उस औरत को भी देखा who wept at his feet and showed her love by wiping his feet with her hair. और फिर हमने इस औरत को देखा जिसने आंसू से उसके पैर धो के अपने बालों से सुखाए। These are the people, these are the events we've met as we've gone through, traveled through the Gospel of Luke. और हमने ये सारे किरदार देखे हैं लूका रसूल की इंजील के पहले 8 बाब के बीच में। We can learn things from them. और हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Today, when we got to Luke 8, we heard about Jesus and his disciples and the women who were traveling with him. और आज हम देखते हैं 8वें बाब के बीच के शुरू में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह सफर कर रहे हैं और उसके साथ उसके शागिर्द हैं और छोड़ते भी हैं। And chapter 8 opens by reminding us that Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. और ये बाब के शुरू में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव खुदावंद की इंजील की मुनादी करते हुए खुशखबरी को सुनाते हुए जो थे वो जा रहे थे। Jesus' main mission और उनका असल मकसद जो था was not healing, वो ये नहीं था कि लोगों को चारों को शिफा दे दे, it was preaching. लेकिन वो कलाम सुनाना था। Jesus' main mission was to give the message of the kingdom of God. और उसका मेन मकसद जो था वो खुदा की बादशाही की मुनादी करना था। Now I gathered all those people up और हमने सारे लोगों को जब देखा and I put them into groups. हमने उनको ग्रुप्स के बीच में Put them डाला into 3 groups. और ये 3 ग्रुप बनाए See what you can see is common और इनके बीच में अब देखें कि इनके बीच में एक कॉमन चीज क्या है। within each group. हर ग्रुप के बीच में Here's the first group. ये पहला ग्रुप है। What was common about it? What all these people got in common? इन सारों के बीच में एक चीज जो कि आपको कॉमन मुत्तफिक दिख रही है वो क्या है? They all had a need. इन सब की एक जरूरत है। They came to Jesus because they needed his help. ये खुदावंद के पास आए क्योंकि उनको खुदावंद से मदद चाहिए। And what did Jesus do? और खुदावंद ने क्या किया? He helped them. खुदावंद ने उनकी मदद की। And there's nothing wrong in coming to Jesus when we need help. और जब हमें मदद चाहिए तो हमें खुदावंद के पास आने में कोई इसमें गलत बात नहीं है। Because there's not one of us who doesn't need help. क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको खुदावंद की मदद नहीं चाहिए। Can we walk in holiness and righteousness and goodness without his help? क्या हम रास्तबाजी के बीच में या पाकीज़गी के बीच में खुदा की मदद के बगैर चल सकते हैं? We're spiritually blind and deaf and crippled. हम रूहानी तौर पर अंधे और लंगड़े और मफलूज लोग हैं। So we come to him for his help. तो हम खुदावंद के पास आते हैं कि हमारी मदद कर। We come to him that he will give us sight हम कहते हैं कि हमारी आंखों को रोशन कर and open our ears और हमारे कानों को खोल and help us to walk in holiness. और हमारी मदद कर कि हम पाकीज़गी के बीच में चल सकें। There's nothing wrong in coming to Jesus because we have a need. और क्योंकि हमारी ये अशद जरूरत है इसलिए इसमें कोई मुज़ाहिदा नहीं कि हम खुदावंद के पास आएं। There is something wrong if all we ever do is come to Jesus when we have a need. लेकिन ये चीज गलत है कि हम खुदावंद के पास सिर्फ उस वक्त ही आए जबकि हमारी कोई जरूरत हो। If we just come to Jesus for what we can get out of him. अगर हम सिर्फ उससे कुछ लेने के लिए ही हम आ रहे हैं। Here's another group. और यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप आप देखिए। What does this group have in common? और इस ग्रुप के बीच में कॉमन बात क्या है?
इस ग्रुप के बीच में आप ऐसी कौन सी चीज देखते हैं जो कि इन सब की एक मुत्तफिक जो है वो चीज है? They are people who heard and responded to God's voice. ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की आवाज को सुना और उसके ऊपर अमल किया। They are the ones who heard and obeyed. और जिन्होंने सुन के उसके कलाम को जब सुना उसके ऊपर उसकी ताबेदारी की। Single one of them. और इन सब ने ऐसा ही किया। They are the ones who gave something to Jesus. और ये वो है जिन्होंने खुदा को कुछ दे रहे थे। They are the group who listened and obeyed. और इन्होंने सुना और ताबेदारी की। And you can guess the last group. और आखिरी ग्रुप जो है आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। They're the ones who gradually, bit by bit, became to reject him, became to hate him, became to despise his word. और ये वो ग्रुप है जो कि धीरे-धीरे उसके कलाम को रद्द कर जिन्होंने कर दिया और उसका बुरा चाहा, उससे नफरत करने लगे। In chapter 8 we saw this group और 8वें बाब के बीच में हम ये ग्रुप भी देखते हैं walking with Jesus. जो कि खुदा यीशु के साथ चल रहा है। They're the group who gave to Jesus. और ये वो ग्रुप है जिन्होंने खुदा को दिया। The women gave out of what they had to support him. और औरतें अपने मानस बाप के साथ उनकी खिदमत करती रही। They ministered to him, his and the disciples. और वो जो बहनें जो साथ पीछे चली इनके वो अपने मानस बाप से खुदावंद की और उसके शागिर्दों की खिदमत करती रही। And Jesus went from village to village preaching the good news of the kingdom. और खुदावंद यीशु मसीह गांव से एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर इंजील की बुनियादी खुशखबरी की बुनियादी करते रहे। Chapter 8 he tells us the effect of his preaching. और 8वें बाब के बीच में वो अपने असर की बात कर रहे हैं जो कि उनके कलाम से होता है। He said, no one lights a lamp and puts it under a bowl or under a bed. और खुदा कहते हैं कि कोई भी दिए को जला के मेज के नीचे नहीं रख देता, He puts it on a lampstand बल्कि वो शमादान के ऊपर रखते हैं so that people who come into the house can see. ताकि जो लोग उस घर में दाखिल हो वो देख सके इर्द गिर्द में। Jesus was the light of the world. और खुदा यीशु मसीह कलाम के मुताबिक इस दुनिया का Preaching and the truth he brought was the light by which we can see the truth. और वो कलाम जो कि उनके मुंह से निकल रहा था वो रोशनी थी जिससे कि लोग देख सकते हैं कि वो कहाँ भटक रहे हैं। And he said, there's nothing hidden that won't be found and there's no secret that won't be well known. और उन्होंने देखा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि दिखाई न जाएगी और कोई ऐसा भेद नहीं है जो कि खुला न जाएगा। Jesus' preaching was revealing the intentions of people's hearts. और खुदावंद की बुनियादी जो थी वो लोगों के जो दिल की जो ख्वाहिशें थी उनको वो बता रहे थे। Some came to him कुछ उनके पास आए and some moved away from him. और कुछ उससे उनके पास से चले गए। Some were hostile to him. और बाज जो थे वो गैर दोस्ताना रवैया रखते थे उससे। Jesus said, अब खुदावंद यीशु ने कहा, pay attention how you listen. तो वजह दो कि तुम किस तरह से सुनते हो। Everyone who has something will be given. और जिसके पास भी जो कुछ भी है उसको थोड़ा और दिया जाएगा। This is his words, ये खुदावंद के अल्फाज है, not my words. मेरे नहीं है। We want to talk about promises of Jesus. This is a promise of Jesus. और अगर आप खुदा के वादों की बात करते हैं तो ये उनमें से एक वादा है। If you pay attention, अगर आप तवज्जो से कलाम को सुनोगे if you put it into action, you're going to get more. You're going to be given more. और अगर आप उसके ऊपर अमल करोगे तो आपको और दिया जाएगा। But if you don't pay attention, और अगर आप तवज्जो नहीं देंगे you'll lose even what little you think you have. तो तुम्हारा जो ख्याल है कि तुम्हारे पास जो थोड़ा सा है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। It's a perilous thing और ये चीज जो है ये बड़ी साफ सी चीज है to be casual about the things of God. कि हम खुदा के की जो चीजें हैं उनके बारे में हम सफाई से देखते हैं। This student is casual about his education. और ये जो है ये अपने आप में बड़ा मुतमईन है। So the people came to him और लोग उसके पास आए and he said, I tell you what my preaching is like.
और ये कहते हैं जब मैं बताता हूँ कि मेरी तालीम कैसी है, and he preached a famous parable. और उन्होंने एक बहुत मशहूर तमसील जो है वो वहाँ पर तुरंत सुनाई। What do you call this parable in your mind? आपके ज़हन के बीच में ये क्या है तमसील है? Do you call it the parable of the sower? क्या आप इसको बीज बोने वाले की तमसील कहते हैं, Do you call it the parable of the seed? या आप इसको बीज की तमसील कहते हैं, Do you think of it as the parable of the soil? या आप इसको एक जमीन की तमसील कहते हैं? What's the parable really about? तो ये तमसील हकीकत में क्या है? Let's see. आइए देखते हैं। You can tell me the story. When our children were young, we had some in the book. It's called Tell the Story. और जब हम छोटे थे, हम स्कूल के बीच में किताबें दी जाती थी जिसके बीच में कहानियां होती थी, And it didn't have any words in it. और उसके बीच में कोई अल्फाज नहीं थे लिखे होते, It just had pictures, सिर्फ तस्वीरें होती थी, and the young child had to make up the story. Do you remember them? और छोटे बच्चे जो थे वो तस्वीरों को देख के वो कहानी बनाते So थे। here you are. Here's your chance to tell a story. और आप ये देख के आपके पास मौका है कहानी सुना सकते So हैं, you can tell a story without words. तो आप अल्फाज के बगैर कहानी सुना सकते हैं। Here it is. ये देखिए, No? आपको मालूम है इस कहानी का, इस तमसील के बारे में आप जानते हैं? Pay attention to it. इसके ऊपर गौर कीजिए Think about it. Give it your mind. Give it your application. और इसके बारे में सोचिए Apply yourself to it. और अपने आप अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करें। Jesus more or less said, I'm preaching in parables so that the people who aren't really interested won't find out the truth. और खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये तमसील जो है, ये तमसील में बात इसलिए की जा रही है कि जिन लोगों को शौक नहीं He said, है no. वो सच्चाई को जान नहीं सकेंगे, He said, no, here, पर वो सुनेंगे but they won't understand. लेकिन उनको समझ नहीं आएगी। You see how it's all the same thing. देखते हैं कि कैसे एक ही जैसी चीज है You pay attention, कि आप गौर करेंगे you listen, and you obey, और आप सुनेंगे और फरमाबरदारी करेंगे, and the word of God is going to have an effect in your life. और खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में असर करेगा। He said, some people's hearts, they're like the path. When you throw the seed, when the word of God comes to them, it doesn't do anything. It doesn't sink in. They're not paying attention. Their head's on the desk. And then Satan comes along and takes it away. और बात लोग जो हैं वो कलाम को ध्यान से नहीं सुनते और वो खो देते हैं। So some शैतान people, अपने आप नहीं चलता है। some people are very shy. और बात लोग जो हैं वो बड़ी कम सतह के बीच They're में, like the soil. Well, underneath the soil is the rocks, and the soil is very shallow. तो ये वो ऐसी ही है कि थोड़ी सी मिट्टी है और नीचे चट्टान है। They can accept the word of God and they'll even be quite happy about it for a while until things get difficult. और वो खुदा का कलाम सुनते हैं, बड़ी खुशी से कबूल करते हैं, They haven't valued the word of God for what it is. लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को वो इज्जत नहीं दी, They haven't taken it deep into their hearts. उन्होंने अपने दिल की गहराइयों में नहीं रखा उसको। So when things get tough, even what's begun to grow just withers away. और फिर जैसे ही, क्योंकि वो थोड़ी सी मिट्टी की वजह से वो जल्दी से निकलता है, लेकिन वो जल्दी ही सूख जाता है। This is what Jesus said happens to the seed when it's sown in the wrong soil. और खुदा कहते हैं कि अगर गलत मिट्टी में या खराब मिट्टी के बीच में वो बोया जाएगा तो ये हाल होगा। And we can all identify with this one. और इसके साथ हम सब जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। I don't know if it's worse in the 21st century. और शायद ये मुझे नहीं मालूम कि 21वीं सदी में और ज़्यादा खराब हो गया होगा, There's always so much information all the time coming at us. क्योंकि बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो हमें दी जा रही है। All our phones, like mine as well, they're bleeping and beeping and doing things and telling us somebody wants this and somebody wants that, and I really should look at this and I really should look at that. और हम ये टेलीफोन ही आप देख लीजिए कि इसके वसीले से हमें किस तरह मालूमात जो है वो मिलती है कि फलां को ये चाहिए, फलाना उधर है, फलाने को ये चीज़ देख लो इंटरनेट पे। And the media is telling me I ought to have this to make me happy, and if I had that, I'd be really successful, and if I had that, everyone would admire me. और मीडिया जो है वो हमें बता रहा है कि अगर मेरे पास ये चीज़ें होंगी तो मैं बड़ा खुश हो
होगा, लोग बड़ी इज्जत करेंगे मेरी कि मेरे पास ये सब चीजें होंगी। And then they're trying to frighten me because they say, you better have health care insurance, and you better have insurance in case somebody robs your house, and you better have holiday insurance, and you better have 1,001 insurance because it's a scary world out there. और फिर जो है वो लोग इसके वसीले से हमें डरा भी रहे हैं कि अपनी जो है वो सेहत की जो है वो बीमा पॉलिसी करा ले, या अपना घर के सामान की बीमा पॉलिसी करा ले, या अपने हॉलीडेज की या शादी ब्याह की भी आजकल लोग कराते हैं। Jesus said, the seed that fell among the thorns stands for those who hear, और खुदा यीशु मसीह ने कहा, but as they go on their way, और कि वो जिस तरह से अपने रास्ते पे जा रहे they हैं, are choked. They are choked तो उनके जो है वो जैसे गले घुट गए, by life's worries, उनको जिंदगी की फिक्रों ने पकड़ लिया, riches, और बहुत सारे मानव गनीमत में पड़ गए, and pleasures, और दुनिया कैश शरण में, because they do not mature. और वो जो है वो मैच्योर नहीं हो सके। That's the temptation for all of us now. और ये वो बीज था जो कि झाड़ी बूटी में गिरा, और ये आजमाइश हम सब पर है। But the seed on the good soil लेकिन जो अच्छी जमीन पे बीज बोया गया, stands for those with a noble and good heart, ये उनके लिए है जिनके बड़े अच्छे और साफ दिल है, who hear the word, जो कलाम को सुनते हैं retain it, और उसको अपने दिल में रखते हैं, and by persevering produce a crop. और कलाम के ऊपर मुतवातर अमल करते रहने से वो बड़ा फल पैदा करते हैं। So what sort of soil do we want to be? तो हमें कैसी जमीन होना चाहिए? We want to be the ones who are going to receive it, हमें ऐसी जमीन होना चाहिए जो कि खुदा के कलाम को जो कि बीज है वो अपने अंदर ले, retain it, उसको अपने दिल में रखे, and by persevering produce a result. और फिर उसको मुतवातर अपने उसके ऊपर अमल करने से फल लाए। And to retain the word, और उस कलाम को अपने थामे रखे, we have to reflect on it often. जिसका मतलब है कि हम बार-बार उसके ऊपर ध्यान करें, Think about it often, उसके बारे में गौर करें, because soon we forget. क्योंकि जल्दी ही अगर हम ऐसा नहीं करेंगे हम भूल जाएंगे। Retain the word. Think about Jesus. What did he say in the Sermon on the Mount? और हम देखें कि पहाड़ी बास के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, You know it. आपको मालूम है, Love your enemies. अपने दुश्मन से मोहब्बत Do रखो, good to those who hate you. जो तुमसे नफरत करते हैं उनसे अच्छे हो, Bless those who curse you. जो तुम्हारे पे लानत भेजते हैं उनके लिए बरकत चाहो, Pray for those उनके लिए who दुआ करो, persecute you. जो तुम्हें तंग करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। Someone slaps you on this cheek, turn the other cheek. और अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना बायां गाल भी आगे काट दो, Someone takes a coat, give them a shirt. और अगर कोई तुम्हारा एक कोई कपड़ा ले ले उसको दूसरा भी दे दो, Give to everyone who asks you, और अगर कोई कहे आपसे and don't ask back what somebody did. तो अगर कोई आपसे कोई चीज ले तो उससे वापस ना मांगो। Now I'm going to say this because I've said it before, but I'm saying it because the young people are here. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवान बच्चे हैं यहाँ पे These are really crazy things to do. कि ये बहुत क्रेजी चीजें काम करनी, You know that. और आपको मालूम है, When you say that, you think I can't do that. और अगर आप सबको कहा जाएगा ओ मैं तो नहीं ये सब कुछ कर If सकता, I kick them on my shirt, my jacket, they want my shirt, they want my trousers, they want my shoes. और ये कैसे हो सकता है बच्चे कि कभी मेरी जैकेट अगर कोई ले ले तो मैं उसको कहूँगा मेरे जूते भी ले ले, And if I start giving to everyone who asks me, before I know, everybody will be crowding around me, and then they won't, and I won't have anything. और अगर मैं ऐसे ही करूँगा और लोगों को पता चलेगा तो सारे आगे मेरे से मेरी चीजें मांगने लग And जाएंगे। if somebody comes and takes my lovely phone, and I don't ask for them back, what? और अगर कोई आके तो मुझसे मेरा मोबाइल फोन मांगे और मैं उसको दे दूँ और मैं वापस ना लूँ उससे। Jesus was exaggerating, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो है बढ़ा के बात कर रहे थे so that we will remember this. ताकि हम इन सब बातों को याद रखें। Everybody knows this thing about if somebody slaps you on this cheek, turn and give it on the other cheek. सारों को मालूम है कि अगर कोई आपकी दाईं गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो अपना बायां गाल भी उसको दे But दे। he means the way you behave should be way out here. और वो ये हमें सिखा रहे हैं यहाँ पर कि हमारा रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए, So it should be really wacky. और हमें जो है उसके मुताबिक चलना चाहिए। So if someone is mean to you, unkind to you, uncharitable to you, you don't start thinking what the natural thing is. How can I get revenge on them? How can I fix them? I hope they burn in hell. I hope they have a car crash. Whatever.
तो हमें ऐसा नहीं करना कि अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करे या लड़ाई झगड़ा करे या हम बुरा भला बोले तो हम भी उससे बदला लेने के बारे में सोचे या उसके लिए बुराई चाहे। He said, let it go. So, okay, so you want to be like that? Well, you be like that. तो खुदा यीशु मसीह यहाँ पर हमें ये समझा रही है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता है तो उसको जाने दो, उसके साथ उसके झगड़ा फसाद नहीं करने And दें। be really generous to those in need. और जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो। Don't just give me on to the bit. Give it till it hurts you to give. और तब कहने की ये नहीं कि आप थोड़ा सा उसको कुछ दे दें, बल्कि इतना दें कि आपको महसूस हो कि आपने कुछ ज्यादा ही दे दिया है। Those who hear the word of God retain it and by persevering produce a harvest. और जो खुदा का कलाम सुनते हैं और अपने दिल के बीच में रखते हैं और गुतवाकर उसके पीछे चलते हैं, वही फल लेकर आते हैं। And then he knows us. He says, oh yeah, I know you. You'll say, oh, well, I'm good to those who love me, and I give things to those who give me things back, and I lend to people who are going to give it back to me, which is a little bit extra. और आप कहते हैं कि हाँ, मैं तो लोगों के साथ बहुत अच्छा हूँ, जो मुझे देते हैं मैं उनको भी देता हूँ, जो मेरे साथ अच्छे हैं उनके साथ अच्छा हूँ। He says, don't think you're good just because you do that. और खुदा कहता है कि तुम ऐसा करते हो ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, Even sinners do that. क्योंकि गुनाहगार लोग भी ये सब कुछ करते हैं। But he said it again. He said, love your enemies. लेकिन खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं अपने दुश्मन से मोहब्बत करो। Do good. So I'm sorry, I keep messing this up. Love your enemies. अपने दुश्मन से मोहब्बत करो। Do good to those who hate you. और जो आपसे नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, उनके साथ अच्छाई करो। Just think about it. Do good to those who hate you. जरा सोचिए कि जो लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, उनके लिए हमने भलाई करी। Do good to those who mistreat you. जो आपको गलत रवैया करते हैं आपके साथ, उनके लिए पीछे बदले। It's completely the opposite of our natural inclination. और ये जो हमारी जिस्मानी फितरत है, ये बिल्कुल उसके बरखिलाफ है। You hear the word of God and retain it, and by persevering, you will reap a harvest. अगर तुम खुदा का कलाम सुनो और अपने दिल में रख लो और फिर खुदा के कलाम के ऊपर अमल करो, तो आप लोग बहुत फल लाओगे। Jesus said, then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and the wicked. क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुदा के बेटे बेटियां कहलाओगे, क्योंकि वो भी ऐसा ही करता है लोगों के साथ। Be merciful just as your Father is merciful. और उसी तरह रहम करो लोगों पर जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारा खुदा रहम करता है लोगों पर। What's the difference between these two houses? और इन दो घरों के बीच में क्या फर्क है? This one ये वाला जो है and this one. और ये, And what does it remind you of? और ये आपको क्या याद कराता है? It should remind you of another parable. ये एक और तमसील के बारे में आपको याद कराएगा। The man had dug deep and laid the foundations of his house on a rock. और ये वो शख्स है जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया और उसकी बुनियाद गहरी खोद के रखी। Whatever came, whatever happened, the house stood firm. और आंधी चली और मींह बरसा और तूफान आया, लेकिन घर कायम रहा। Another one who built a house without digging any foundations. और एक दूसरा शख्स था जिसने कि उसकी बुनियाद नहीं डाली और वैसे घर बना दिया। The trouble came, it collapsed. और क्योंकि नींव नहीं थी खोदी, तो जब तूफान आया तो घर गिर गया। Two very simple pictures. बहुत सादी सी दो तस्वीरें हैं। Why are they such simple pictures? और ये क्यों इतनी सादी सी तस्वीरें हैं? So that you can retain it. ताकि आपको ये बातें याद रहे। Who hears the word of God, जो खुदा का कलाम सुनता है retains it, और वो उसको याद रखता है by persevering, और produces a crop. और बुद्धवाकर उसके ऊपर चलने से बहुत सारा फल आता है। Jesus said this. खुदा यीशु मसीह ने कहा Anyone who comes and listens to me कि जो कोई भी आता और कलाम को सुनता है and obeys. और मेरी फरमाबरदारी करता है, That's the difference between these two houses. ये फर्क है इन दो घरों के बीच में। Anyone who hears what I say but doesn't obey me कि वो शख्स जो कि मेरे कलाम को सुनता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, is like the one who built the house without any foundation. और ये वो शख्स है जिसने अपना घर बना दिया लेकिन नींव नहीं खोद के गहरा।
किया। You hear and obey, this is your house. और अगर आप ये घर है, You hear, forget, wander off, get too busy with the cares and worries of this life, and I'm sorry, but this is your life. लेकिन अगर ऐसा किसी ने अपना घर बनाया हुआ है तो और उसको दुनिया की बड़ी फिक्रें है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। I'm saying these words, मैं ये अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ, but my words have no authority. मेरे अल्फाज के बीच में कोई इख्तियार नहीं है। But the one who said the words originally, लेकिन जिसने असल में ये अल्फाज कहे हैं, they have ultimate authority. उसके पास हतमी इख्तियार है, कंप्लीट अथॉरिटी उसके पास है। And as we get to the end of our study in Luke chapter 8, और जैसे हम लूका रसूल की इंजील के 8वें बाब के आखिर तक आ रहे हैं, just in case whoever's reading Luke hasn't got the message yet, और वो लोग जो कि घर के बीच में लूका रसूल की इंजील का मुताला कर रहे हैं और अभी तक उनको पैगाम नहीं मिला, when Jesus' mothers and brothers come to see him, जब खुदावंद यीशु मसीह की माँ और उसके भाई और उसको मिलने के लिए आए, he says, no, I'll tell you who are my mothers and who are as close as my mother and as close as my brother. तो खुदावंद यीशु मसीह को जब लोगों ने आके कहा तेरे माँ और तेरे भाई जो है वो भाई हैं, तुझे बुलाते हैं, तो उसने कहा नहीं, मैं बताता हूँ मेरी माँ कौन है और मेरे भाई कौन है। Who are as close to Jesus as his mother and brother? और कौन उसके माँ और भाइयों से ज्यादा करीब थे खुदावंद के? What group of people? वो कौन लोग थे? Though my mother and my brothers are those people who hear and obey God's message. खुदावंद ने कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो कि मेरे कलाम को सुनते और उसके ऊपर अमल करते हैं। Somebody asks you what the sermon is about today. और अगर कोई आपसे पूछे कि आज का कलाम किसके बारे में था, I hope you can remember. तो मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। Just to finish it off, what the Word of God will do in our lives कि खुदावंद का कलाम जो हमारी जिंदगी में जो कुछ करता है, depends on the condition of our hearts. तो वो हमारे दिल की हालत के ऊपर मुनहसर है। And that's an amazing thing. और ये एक बहुत हैरतअंगेज चीज है। God brought the universe and everything into being by His Word. और खुदा जो है उसने पूरी कायनात को, धरती को, जमीन आसमान को, जो कुछ भी इसमें है, अपने मुंह के कलाम से बनाया है। His Word is powerful, infinitely powerful. उसकी बातों में बड़ी कुदरत और ताकत है। But He's gracious enough. God Almighty is humble enough लेकिन अजीम खुदा वो बड़ा हलीम भी है to say, here is my word, और वो कहता है ये मेरा कलाम है, and to leave it up to each one of us to determine how much effect that will have on us. और फिर वो हम में से हर एक पर ये बात छोड़ देता है कि हमारे ऊपर इस कलाम का कितना असर हो रहा है। The Word that created the universe, और वो कलाम जिसने कायनात को बना दिया, and He gives us the power to just ignore it. और उसने हमें ये भी ताकत दी है कि हम उसके कलाम को इग्नोर भी कर सकते हैं। What the Word of God will achieve in our lives depends on the condition of our hearts. और खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में कितना काम करेगा, कितना असर करेगा, कितना फल लाएगा, ये हमारे दिल की हालत के ऊपर है। Isn't it true that we all have some areas which are hard, shallow, and crowded with weeds? और क्या ये सच नहीं है कि हमारी भी जिंदगी में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो कि बड़ी थोड़ी सी मिट्टी के बीच में वो बीज गया है, हमने ध्यान से नहीं सुना, या दुनिया की फिक्रें हमें किसी तरह से परेशान कर रही हैं। We sang that song, Purify My Heart. हमने भी गीत गाया था शुरू में, मेरे दिल को खालिस कर। And G2 led us to think about, there's some areas in my heart that need to be purified, some blind spots, so even some things I don't know about. और भाई जीतू भी हमें इसके बारे में उन्होंने भी बाद में थोड़ा सा शेयर किया था कि हमारी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं हमारे जिंदगी में जो कि सही नहीं है खुदा के साथ, और हमें उनको भी ठीक करना है। He suggested we should ask God to reveal that to us. और हमें भी खुदावंद से कहना है कि हमारी जिंदगी के वो बातें जो है वो हम पर जाहिर करें। We reflect on this and ask God to reveal the truth to us.
और हम खुदावंद से कहें कि अपनी उस सच्चाई को हम पर जाहिर करें Work hard to turn those areas into soil. और हम उसके ऊपर काम करें कि वो अच्छी जमीन के ऊपर बीज बोया जाए। Final pictures. फाइनल तस्वीरें ये है I'm not even going to say any words for it. और इनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। You tell the story. आप बताइए कहानी